Assalamu alaikum everyone and welcome you to our show Capital Insight powered by Voice of Capital FM 97.6. Before getting into the real theme of the show, I would request my dear guests to please introduce themselves. Today we have two of the bona fide motivational speakers and a psychologist with us. So, firstly, I will go with Ma'am Khadija Hassan. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum salam. How are you? I'm fine. Thank you very much. Alhamdulillah, I'm also blessed. Going towards you. Yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How I are you, hope you Roj? both will be fine. Alhamdulillah, I'm doing well. Ma'am Khadija, please introduce yourself. I am basically an English language instructor, and I have over 22 years of teaching English. And in 2015, I did my CELTA, which is a certification of teaching English language to adults from Cambridge. And I have got 4 years of study in psychology. I'm not a psychologist. My majors was in literature, English literature, but I studied psychology for 4 years, and you can say that I practically used it on people around me, especially my students, the people around me, my family, my colleagues, and it has helped me a lot in understanding how people think, how the youth think, and how to handle them. I believe that this is the major issue in our society these days. That our youth is really without any guidance. They don't know whom to go to if they have any problems, and they do not know if they actually need help. So this is, I think, the basic reason why the youth feels, or the young generation feels that they are lost. They're also termed as the lost generation. I don't believe they're actually lost. We just need to understand them and lead them by the hand to where they can actually find their own path. Thank you so much, ma'am. And I call you psychologist because Turab is our fellow host, and he always used to talk about you. In that sense, my mommy this, my mommy that. So all your thoughts, which are in our mindset, according to that, I call you a psychologist, and you're no more left than that. So going towards sir, sir, how are you feeling today to be a part of our show today? Thank you very much for inviting me in your show, Roj. As you know, I'm You, motivational speaker in Askari Academy, and I'm career counselor here. I did my master's in computer sciences. As you know, मैडम ने भी कहा कि मैं लिटरेचर से हूँ और लेकिन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें बट यहाँ पे अस्करी एकेडमी में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर और मेरे मास्टर्स किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। यहाँ पे लेक्चर्स हमारे होते हैं करियर काउंसलिंग के, एंट्री टेस्ट के सेशंस होते हैं, सेमिनार्स वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जैसे मैडम ने बात की कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको, जैसे एफएससी के, उनका सबसे बड़ा जो मसला है कि या एंट्री टेस्ट के इवन उनको इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि उसका गोल क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और वो सारी जिंदगी आप कह लें मेहनत करता रहता है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा टारगेट क्या है। तो बहुत सारा हमारा ऐसा टैलेंट है जो हम कह सकते हैं गांव देहातों में भी है, लेकिन बदकिस्मती से वो अच्छे इदारों में पहुंच ही नहीं पाता। तो ये मैं समझता हूँ हम सबका फर्ज बनता है कि जो भी हमें बच्चा मिले, जो भी हमें यंग जनरेशन में स्टूडेंट मिले, हम उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूर दें, हम उसको डायरेक्शन दिखा दें, ये राइट है, ये रॉन्ग है। शायद हम 100 बच्चों को बताएं, उनमें से एक कोई अच्छा निकला है, 2 अच्छे निकले हैं, और हमारी वो कामयाबी का जो हम कह सकते हैं आखिरत की कामयाबी का वो जरिया बन जाए।
Thank you so much, sir. You are amazing as always. Or you have been one of the best motivational speakers of KIPS when we were at there. So today we thought to invite you here. Why not to continue those thoughts which we have left here? So, ma'am, I would like you to please give your thoughts about what is the role of young generation or youngsters in the progress of a nation. Young students, they comprise, the majority. They are the majority of any country. You have very few adult population, and the number of youth is the greatest in any country, or at least in our country. It is. Now, when you, if that big chunk of your population, if it's misled, if it doesn't know where it's going, if it doesn't know where they should canalize their energy, then you are losing a big chunk of your working population. वो आपके मुस्तकबिल के मेहमान भी हैं, ठीक है, उन्होंने इस कंट्री को लेके आगे चलना है। अभी सर ने जो बात की, बहुत अच्छी बात की कि जो एफए के लेवल पे स्टूडेंट्स आते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। इसमें एक बहुत बड़ा जो अमल दखल है वो हमारी सोच का है, सोसाइटी में पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बनता देखना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हमारे वालिदैन ने जो नहीं किया वो चाहते हैं उनकी औलाद करे, ठीक है। वो वालिदैन की चॉइस थी, वो ये नहीं समझता कि हमारा बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, हमारा बच्चा क्या करना चाहता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हमारा बच्चा ये करे। बच्चे माँ बाप की एक्सटेंशन जरूर होते हैं, लेकिन बच्चे अपने माइंडसेट के साथ इस दुनिया में आते हैं। अल्लाह ताला ने उनको उनकी इंटेलिजेंस दी है, अल्लाह ताला ने उनको उनके स्किल्स दिए हैं, उनको वो करने देना चाहिए जो कि वो करना चाहते हैं, जिसके वो काबिल हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है करियर काउंसलिंग का, हंटिंग द टैलेंट। आपको पता हो कि इस बच्चे में टैलेंट है। नाउ द फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल यू आइडेंटिफाई इट एंड यू रिकॉग्नाइज इट। जिस दिन आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, उसके बाद से वो प्रॉब्लम नहीं रहती। देन यू वर्क टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे यहाँ अलमिया जो है कि हमारी जो अब शायद इतनी बड़ी मेजॉरिटी पेरेंट्स की नहीं है जो कि अनएजुकेटेड है, लेकिन कुछ साल पहले हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा वेल इन्फॉर्म नहीं थे। अब कॉल देम अनएजुकेटेड, लेकिन वेल इन्फॉर्म नहीं थे। बच्चों को समझने की कोशिश नहीं की जाती थी, अपनी चॉइसेस बच्चों के ऊपर थोपी जाती थी, ठीक है। बच्चा माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक सर्टेन स्कीम पर चल पड़ता, लेकिन वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाता। ना उसमें बच्चे का दिमाग चल रहा है, ना उसमें बच्चे का दिल लग रहा है। करियर काउंसलिंग हमारे मुल्क में बहुत मिलता है और इसका एक बहुत मेजर रोल है बच्चों को गाइडेंस देना और उनके ट्रैक पे लेके आना। दूसरी जो हमारी एक बहुत बड़ी इशू, आपने देखा होगा जब भी आते हैं रिजल्ट अनाउंस होते हैं, फेडरल बोर्ड के होते हैं, पंजाब उसके होते हैं, बोर्ड के होते हैं, जब भी मैट्रिक के या एफएससी के, आप देखेंगे जो टॉपर्स होते हैं usually they belong to a very some of them belong to a very poor background. आप कहेंगे कि इतने उनको एडवांटेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, वो इतना एक्सेल कैसे कर जाते हैं, जबकि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव गॉट द गूगल एंड इंटरनेट एट द फिंगरटिप्स, यू हैव गॉट ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टीवी है, केबल है, गेम्स हैं, इंटरनेट है, व्हाई यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। तो आप ये बात नोट करें कि जिन बच्चों के जहन में या जिनको बताया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का गोल ये है, तुम्हें इस गुर्बत से निकलना है, तुम्हें हालात चेंज करने हैं, तुम्हें खुद को चेंज करना है, तुम्हें कुछ बनना है, वो बच्चे फोकस करते हैं। The problem with our generation is that most of them are suffering from PTSD. They cannot. Ma'am, sorry to interrupt you. Can you give me just 10 seconds? Sir Sami, can you please mute your mic so that we can listen better to Ma'am Khadija? ठीक है, मैं चेक कर लूँ। Thank you so much. Please carry on, ma'am. जी, हमारी जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर सफरिंग फ्रॉम अटेंशन डेफिसिट।
वो एक किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। जब वो पढ़ते की तरफ आती है तो पढ़ने पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती, और क्यों नहीं कर पा रही होती, उसके फैक्टर्स ये हैं कि उसके डिस्ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। बच्चों के पास टेलीविजन है, सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम वो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, गेमिंग है, दे हैव गॉट टू मच थिंग्स टू डू। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आप दे आर वेरी इंटेलिजेंट, their brain is working too fast and you're not giving them enough things to do, so they will not stick to one thing. The brain always requires some kind of a stimuli कि उनको वो एक्टिव रखे और वो उनकी अट्रैक्टेड रहे किसी ना किसी चीज के साथ। अब ये जो अटेंशन डेफिसिट है इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। एक तो हाइपर एक्टिविटी होती है ये ब्रेन की, वो होती है बिकॉज दे फील दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे फील दैट द एनवायरनमेंट अराउंड देम इज वेरी बोरिंग। जितना ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है क्लास में वो उतना ही नॉटी होता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ऑफ 22 years। और उसका रीजन ये है कि दे गेट बोर्ड वेरी इजीली। जब टीचर क्वेश्चन करती है वो उससे पहले उस क्वेश्चन का आंसर जानता होता है, ठीक है। तो उस सूरत में दे आर टेक्निक्स व्हिच टीचर्स कैन अडॉप्ट कि एक क्लास है उसमें मिक्स इंटेलिजेंस के बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, और उस दौरान में वो बच्चा who is ahead of them, he has finished his work, now he has nothing else to do, तो वो तंग करेगा साथ वालों को, ठीक है। either he will be कोई ना कोई something will be cooking up in his head। the trick is to give him something to do, you need to give him something। आपने जो होमवर्क दिया उसको बोलो okay why don't you start with your homework right now and at home you will have no homework। or I used to keep worksheets with me, extra worksheets, बाकी सब क्लास को दे दी, सबसे पहले कर दी, उसको एक और दिन चले या वर्कशीट से मैं यूजुअली छोटे बच्चों के लिए खाली फिगर्स होती थी उनको कलर करना होता था, राइट। तो when an active student or an intelligent student is occupied he will not be trouble free। दूसरा एक जो बहुत मेजर सोर्स है वो हमारी खुराक है, हमारा फूड है। हमारे जमाने में मेरे ख्याल में हमारे घरों में जब कोई गेस्ट आता था तो शायद ये कोक और पेप्सी जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये आया करती थी, ठीक है, दे आर वेरी हाई इन शुगर। आजकल के जमाने में बच्चे हमारे खाना नहीं खाता है, बर्गर है तो उसके साथ भी ड्रिंक आएगी, पिज्जा है तो उसके साथ भी ड्रिंक आएगा। द इशू इज नॉट द ड्रिंक, यू कैन हैव जूस, ठीक है, द इशू इज विद हाई कॉन्टेंट्स ऑफ शुगर। आपका ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स पे चलता है, आपका ब्रेन को शुगर चाहिए काम करने के लिए, बट व्हेन हाई डोज ऑफ शुगर इज गिवन इट एक्ट्स एज अ ड्रग। ड्रग एडिक्शन होती है आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को शुगर की एडिक्शन हो जाती है, ठीक है। उसमें जब वो हाइपर एक्टिव होगा तो बच्चे चीखते हैं, एक जगह पे टिक कर बैठते नहीं है, एंड वी थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद देम। द थिंग इज दैट देयर इज टू मच एनर्जी इन देयर बॉडी एंड दे हैव टू कंज्यूम इट। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनको जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इन बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल करना इन द सेंस कि उनको हमने डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, उनको डायरेक्ट करना है टुवर्ड्स देयर फ्यूचर। इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर अ बिग हिंड्रेंस इन देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। द टीचर्स they should be well aware of these facts and the environment itself। तो ये वो मेजर फैक्टर्स हैं, अगर जो ठीक हम कर पाएं, जिनको अगर हम समझ पाएं तो हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारा फ्यूचर जो है we can secure it to some extent। Thank you so much, ma'am. I must say I appreciate your words. Each and every single word was very true and close to my heart, and I have experienced them as well. Most of the naughty students are those who are most intelligent in our class. So I will go with Sir Sami. What you want to say about it? मैं समझता हूँ कि मैडम ने बहुत सारे पॉइंट्स को जबरदस्त किस्म की रोशनी डाली है उनके ऊपर, और ये वो पॉइंट्स हैं। अच्छा, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? करिए माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर दे प्लीज। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों पे मैडम ने ये ज़बरदस्त किस्म की बात कही। मैं समझता हूँ कि इन पे मज़ीद थोड़ी थोड़ी बात करना भी काफ़ी बेहतर होगा।
बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक स्टूडेंट की बिल्कुल शुरू वाली ज़िंदगी, फिर उसके बाद वो मैट्रिक एफएससी वाली ज़िंदगी, इवन वो फूड का बीच में काफ़ी ज़िक्र किया, फिर पेरेंट्स का, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ज़िक्र की। हमें ना उरूज इस जनरेशन को समझना होगा। ये जनरेशन जो 2000 के बाद आई है, हमें इस जनरेशन को समझना होगा, और ये बहुत मैं समझता हूँ एक मुश्किल टास्क है। जैसा कि हम कहते हैं ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बड़े मुश्किल फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के अपने बड़ी मुश्किल चीजें पढ़ी थी, सेम ऐसे ही है उरूज बिल्कुल। इस जनरेशन को समझना, ये एक्स जनरेशन नहीं है, ये वाई जनरेशन है, ये डायरेक्ट जी जनरेशन है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे वो मैं मैडम की आप बात आगे लेके चलूंगा। ये टेक्नोलॉजी यूजर है, ये टेक्नोलॉजी को पसंद करती है। ये पहली बात, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मुझे याद है मैम कि मैं जब 6-7 साल का था तो उस वक्त नोकिया 3310 फोन होता था, एक बटनों वाला। वो ऐसा फोन था जिसको अगर आप सर पे भी मारे तो दूसरा बंदा उसका खून निकल आता था। मुझे उसको अनलॉक करना भी नहीं आता था। लेकिन आज मेरे घर में 4 साल की मेरी भतीजी है, 3 साल की, उसको पता है यूट्यूब का आइकन कहाँ पे है, मैंने कौन से कार्टून लगाने, ये सारी चीजें उसको पता है। हमने बच्चों को मोबाइल तो दे दिए, हमने टेक्नोलॉजी तो दे दी, लेकिन बच्चे माँ बाप से दूर हो गए, वो रिश्ते नहीं रहे। बच्चा माँ के पास जाता है, माँ बिजी है, बाप के पास जाता है, बाप कहता है मैं भी काम से आया हूँ, वो दोनों उसको मोबाइल दे देते हैं। कुछ अरसे के बाद, अभी हम ये अल्लाह ना करे, लेकिन ये फील हो रहा है मुझे कि कुछ अरसे के बाद हम देखेंगे कि ये माँ बाप को बुलाना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उनका बेस्ट टाइम था उस वक्त माँ बाप ने उनका साथ नहीं दिया। और फिर ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा और वो हमारी बात सुने। पहली गलती मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारा है कि हम बच्चों को खुद फोन दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे, ये बच्चा जो स्कूल जाता है अभी, जैसे स्कूल गोइंग 9-10 के स्टूडेंट है, ये कैजुअल ज्यादा होना चाहते हैं जी। आप देखें यूनिफॉर्म भी अगर बच्चे ने पहना होगा ना, तो उसमें भी से भी वो देखें आपने, वो पैंट के पांचे अजीब अजीब किए हुए होंगे, यूनिफॉर्म वाली पैंट के, शर्ट पे अजीब अजीब सी लड़कियों ने तितलियां बनाई हुई होंगी। मतलब उन्होंने डिसिप्लिन नहीं है, उन्होंने नहीं फॉलो करना उसको, जो आपका यूनिफॉर्म चला रहा है। ये गैदरिंग में ज्यादा बच्चा पसंद करता है जी पढ़ना। आज अगर हम आज 10-12 साल पहले बात करें तो यकीन करें, लोग रिश्तेदारों के घर भी नहीं जाते थे। खैर अब तो बिल्कुल भी नहीं जाते, लेकिन अब पढ़ाई की वजह से नहीं, अब और काफी मसरूफियात हो गई जिसकी वजह से नहीं जाते। अगर यहाँ पे हम ये चीज एक देखते हैं कि जो बच्चा गैदरिंग में पढ़ना पसंद करता है, कहता है जी हम ग्रुप स्टडी करेंगे, बच्चा हमेशा इन्वायरमेंट से सीखता है। वो इन्वायरमेंट से कैसे चीज सीखता है कि यकीन करें, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आए कि यहाँ पे आके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो किस इन्वायरमेंट से उन्होंने रोना शुरू कर दिया? वो ये कहते हैं जी कि हमारे घर में बहुत ज्यादा मसले हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम पढ़ाई कैसे करें। सेकंड नंबर पे एक पेरेंट आ गए, उन्होंने कहा जी कि मेरा मेरा बच्चा गालियां दे रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो पढ़ने में पहले ठीक था। तो हमने कहा जी चलें आप ऐसा करें कि आप उसके फ्रेंड्स देख लें, उसके फ्रेंड्स कौन से हैं। सबको खाने पे बुलाया गया, उसके फ्रेंड को देखा तो 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। उन 2 बच्चों की थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि उनके माँ बाप की आपस में सेपरेशन हो चुकी है। उनका असर उन बच्चों पे, उनके बच्चों पे, और उन बच्चों का असर उस बच्चे पे आ गया जिसके बाप यहाँ पे हमारे पास आता है। तो ये एनवायरनमेंट से हमारा बच्चा बहुत ज्यादा चीजें सीखता है। थर्ड नंबर पे जी स्टूडेंट्स में आती हैं नेगेटिव थॉट्स। ये नेगेटिव थॉट्स स्टूडेंट्स में कैसे आती हैं, ये क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा, अगर हम बात करते हैं ना कि जब हम पॉजिटिव सोचना ही छोड़ देता है हमारा बच्चा, वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाएगा। हम उसको नेगेटिव चीजें खुद इवन हर चीज में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता, पेरेंट्स को नहीं पता चलता, वो लाड प्यार में वो कई नेगेटिव चीजें कर बैठते हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज एक और देखनी है कि जब हम 9-10 के बच्चे को, फॉर एग्जांपल जो स्कूल सिस्टम से आता है, ये भी खैर स्कूल सिस्टम है लेकिन ये इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम,
जैसे कि स्कूल का कहते हैं ना इंटरनल, जो बंदा आपको पढ़ाता है वही आपका पेपर बनाता है, वही आपका पेपर लेता है, वही पेपर चेक करता है, वही मार्क्स लगा के रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ये है एक इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम। सेकंड नंबर पे आता है जी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है। ये 8th क्लास से जब बच्चा 9th 10th में आता है, ये सारा बोर्ड का सिस्टम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसको पढ़ाने वाला कोई और है, पेपर बनाने वाला कोई और है, पेपर लेने वाला, चेक करने वाला, मार्क्स लगा के रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला कोई और है। अब हम ये पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारा बच्चा जैसे ही 8th क्लास से 9th में आया ना तो वो टॉप कर जाए बोर्ड। ऐसा नहीं होता। ये विश होती है सारे पेरेंट्स। हमारा बच्चा टॉप कर जाए जी, हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले ले। हम बच्चे को समझने का टाइम ही नहीं देते इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम को। एक्सक्यूज मी समी, मैं आपको कट कर रही हूँ। हम खुद भी बच्चे को नहीं समझते बीइंग अ पेरेंट जी। आजकल के बच्चे का अगर आप पूछेंगे ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो कहेगा मुझे कोई समझ नहीं, मामा आप मेरी बात नहीं समझ रहे, बाबा आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जो बच्चा ये बात करेगा कि मुझे आप समझ नहीं रहे, वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपने उस बच्चे को पैदा किया है, आप उस बच्चे के पहले दिन से आज तक रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, आप उसके सरपरस्त थे। आपको क्यों नहीं पता आपके बच्चे के दिल में क्या है? आपको क्यों नहीं पता कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है? बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि माँ जो होती है वो बहुत कीमत होती है बच्चों की। बाप ने सारा दिन काम करना है, कमाई करनी है। माँ अगर वर्किंग है या नहीं है, उसका खुद भी वर्किंग होने के साथ भी उसका मेजर टाइम उसका बच्चों के साथ भी लगता है। अगर वो आपने कहा था कि बच्चों पे असर पड़ता है एनवायरमेंट का, तो पहली एनवायरमेंट है वो घर की एनवायरमेंट। बिल्कुल, ये आपकी बात वो आगे से कोड होगी ना कि आपने कहा कि पेरेंट्स थोप देते हैं ये बच्चों पे कि जो हम चाहते हैं बच्चा वो बने, वो करें। अच्छा, उसके ऐसा बाद नहीं हो सकता। जो आपने कहा ना कि वो हमारे बच्चे को हम एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं समझते। एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत बाद में आता है, हम बच्चे की इंटेलिजेंस नहीं समझते। क्या हमारा बच्चा, देयर आर 16 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, मेजरली आप उनको 8 इंटेलिजेंस में डिवाइड करते हैं। कोई बच्चा सुनकर सीखता है, कोई बच्चा पढ़ के सीखता है, कोई बच्चा हाथ से चीजों को देख के करके सीखता है, कोई बच्चा दूसरों को करता देख के सीखता है। अब ये इंटेलिजेंस उसमें इनबॉर्न है, ये लर्न नहीं है। लेकिन क्या आपका एग्जामिनेशन सिस्टम आपको इन तमाम इंटेलिजेंस को एग्जामिन करने का सलाहियत है? नहीं है। हमने अपना एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा, मैं कहूँगी बहुत ही दखलअंदाजी है। वो बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक नहीं करते, वो बच्चे की मेमोरी को चेक करते हैं। इसलिए बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वी नो सो मच बट स्टिल वी आर अनएबल टू गेट द गुड पोजीशन। मैम, अगर हम दो बातें बच्चों को सिखा देना तो मैं समझता हूँ जो आप बात कर रही हैं हमारे ये सारे के सारे बच्चे 100% एक्यूरेट इस पे आ सकते हैं। वो दो बातें ये हैं कि एक स्टूडेंट के पास वो दो चीजें जो होती हैं, एक है उसका नॉलेज, दूसरी होती है उसकी स्किल्स। अब नॉलेज क्या है, हमें इस चीज को पहले समझना है। नॉलेज ये है जी कि हमारे बच्चे ने 2 किताबें पढ़ ली, 4 किताबें याद कर ली, या पूरे का पूरा सिलेबस याद कर दिया उसने, ये है नॉलेज। लेकिन क्या नॉलेज से सिर्फ मार्क्स आ सकते हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने सुनना तो नहीं है ना, एग्जामिनर ने ये तो नहीं देखना कि इस बच्चे को आता कितना है, वो ये सिर्फ आपकी नॉलेज आपको बता रहा है। अब आते हैं स्किल्स की तरफ। स्किल्स हैं क्या? सबसे पहली चीज हैंड राइटिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल, इवन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये वो सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमारा बच्चा पूरा साल इग्नोर करता है, और सिर्फ एक चीज उसको सिखाई जाती है, बेटा याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। कभी भी 100% नॉलेज के साथ 100% मार्क्स नहीं आ सकते, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। एक पेपर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेपर है, मैं कहता हूं जी कि मुझे ये 80% पेपर याद है, लेकिन ये क्या श्योरिटी है मुझे कि ये 80% मार्क्स भी एग्जैक्ट आ जाएंगे? ये कोई श्योरिटी नहीं है जब तक मेरे अंदर ये सारी की सारी स्किल्स नहीं होंगी। एग्जामिनर सबसे पहली चीज जो चेक करता है वो है जी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, और पेपर प्रेजेंटेशन आपकी हैंड राइटिंग और आपकी टाइम मैनेजमेंट से होगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर खैर है, टाइम मैनेजमेंट का कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल होता है,
ये टाइम मैनेजमेंट मैम और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ी आसान सी एग्जाम्पल दूंगा। एक स्टूडेंट है, उसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे ही वो लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-3 पेजेस का जरूर होगा, एग्जामिनर ने कहा 1 मिनट लेफ्ट, क्या होगा? रूज आप बताएं प्लीज। वो भूल जाएगा। सर भूल जाएगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। उसको वो एक क्वेश्चन आता भी होगा ना रूज, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग को एक नेगेटिव मैसेज मिल गया कि 1 मिनट रह गया। अब वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी पेजेस पलटेगा। उस वक्त ना मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि मार्कर का ढक्कन ही नहीं खुल रहा होता, अगर खुल भी जाए तो ढकना शायद उधर जाके गिरता है, हमें उसकी भी परवाह नहीं होती। क्योंकि देखिए ये ऐसा एक स्टूडेंट क्यों करता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। जब एक स्टूडेंट का उरूज कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो चीजें जो उसको पहले याद होती हैं पूरा साल, 1 मिनट में भूल जाता है वो। ठीक है, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो जब स्ट्रेस लेवल हाई हुआ तो चीजें भूल गया बच्चा। तो यहाँ पे हमने बच्चों को सिखाना है कि जब आप पेपर घर में करें, आप एकेडमी जाते हैं, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट करनी सीखनी है। क्या फायदा अगर हमें 100 नंबर का पेपर आता होगा और हम 80 मार्क्स का पेपर करके आ जाएंगे? किसको फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वो स्किल है जो कि आपको बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम उरूज आपने भी शायद दिया होगा। 95% स्टूडेंट्स मुझे जो फीडबैक उन्होंने दिया है, उनमें से 95% स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें पेपर सारा आता था, लेकिन हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। हम घर आके दूसरे दिन अपने घर के सोफे पे बैठ के करते हैं ना, तो हम 98-99 क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। और वहां पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक स्ट्रेस का इन्वायरमेंट था। हमने ये चीज सीखनी है, ये बच्चों को हमने बतानी है। सिर्फ ये ना कहें पेरेंट्स, अगर यहाँ पे सुन रहे हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, कि बच्चे को रट्टा लगाए जाए, बच्चे के कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बच्चे की हैंड राइटिंग पे कोई तवज्जो नहीं है, बाकी स्किल्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ये वो स्टेज है आपके बच्चे की 9-10 फर्स्ट या सेकंड में समझता हूँ नेक्स्ट स्टेज चली जाती है, क्योंकि 10th क्लास में आपने डिसाइड करना होता है बच्चे का करियर, बच्चे का फ्यूचर क्या है। जी मैम। सर इन एडिशन टू योर थॉट, क्या आप ये समझते हैं कि पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट बच्चों ने क्या करना है, या बच्चों को खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमने आखिर क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट लेवल क्या है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक बंदा जो अपनी एबिलिटीज को अच्छे से जानता है, वो कोई मदर फादर या कोई और बंदा नहीं जान सकता। आपको खुद पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी इतनी एबिलिटीज, इतने मेरे पास स्किल्स हैं। उरूज, दुनिया में जो सबसे मुखलिस इंसान होता है ना आपके साथ, वो आपके वालिदैन हैं। वो आपकी बहुत बेहतरी चाह रहे होते हैं, ठीक है? वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये भी कर जाए, वो भी कर जाए। वो खुशी में उनकी खुशी इतनी होती है, उनका दिल इतना चाह रहा होता इतनी हाई लेवल की है। खुशी। लेकिन बेचारे बच्चों का भी तो कुछ सोचो कि 1000 बिल्कुल नहीं, मैं उसी बात पे आने लगा हूँ। लेकिन मैंने पहले कहा कि ये जी जनरेशन है, ये आज से 20-25 साल पुरानी जनरेशन नहीं है। आप इनको मैट्रिक के स्टूडेंट को बताएंगे ना कि आप ये वाली डिग्री कर लें, वो 1 मिनट में आपको बता देगा ये डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से होती है, इसका मेरिट क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्रीगेट, ये सारी चीजें गूगल पे आपको करके दे देगा। आज से 15 साल पहले लोगों को सिर्फ ये पता होता था, 20 साल पहले, कि हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं पता होता था रूज के कैसे बनना है, कौन सा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देना है, डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए। पंजाब का डोमिसाइल है तो बच्चा किस टेस्ट में अपियर हो सकता है, केपीके का डोमिसाइल है तो कौन सा टेस्ट दे सकता है, आपका जैसे एजेके का डोमिसाइल है तो आपने कौन सा टेस्ट दिया होगा। ये चीजें नहीं पता होती पेरेंट्स को, लेकिन आज के बच्चे को ये सारी की सारी चीजें पता हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 10th क्लास में बच्चे के साथ मशवरा जरूर करना चाहिए। मोस्टली आप रखें कि ये बच्चा डिसाइड करे।
अच्छा, यहाँ मैम पे टीचर मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी इस बारे में। ये इन्होंने कहा कि आज से 20-25 साल पहले जो है पेरेंट्स ऐसे करते थे। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आई वांटेड टू स्टडी साइंस। मुझे मैथ्स अच्छी भी नहीं लगती थी एंड अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी मुझे टीचर मिल गई कि जिनकी वजह से मुझे नफरत हो गई मैथ्स से। और वो ऐसा होता था कि जब मैं मैथ्स की बुक खोल के बैठती थी ना तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा, मुझे मैं पूरा एक क्वेश्चन करके 3 दफा करके जब मैं दोबारा रिस्टार्ट करती थी तो मुझे भूल चुका होता था कि इसमें मैंने करना क्या है। मुझे लिटरली मुझे खौफ था आना शुरू हो गया। Would you believe कि back in 1990s I barely passed my maths in metric। 39 मार्क्स आए थे, 33 शायद उस जमाने में पासिंग मार्क्स होते थे। मैंने कहा खुदा का शुक्र है मेरी जान छूट गई मैथ्स से। I wanted to study science, I was very good at science। वो भी थोड़े से I was short of a few marks, तो मुझे प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा था लेकिन प्री मेडिकल के लिए नहीं था। माई फादर इंसिस्टेड कि नहीं आपने प्री इंजीनियरिंग करनी, आपने आर्ट्स रखना नहीं है, आप प्री मेडिकल नहीं, वहाँ आप प्री इंजीनियरिंग। मैंने अब्बू को बोला कि वहाँ पे मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग में मैथ्स, स्टैट्स और एक और शायद कोई सब्जेक्ट होता था, तो आई कांट डू इट। अब्बू कहते नहीं आप यही रखोगे। और आई थिंक एट दैट एज, मतलब आप समझें कि 18-19 साल की जो होती है, आई रिबेल्ड अगेंस्ट माय फादर एंड आई सेड कि आप जो मर्जी कर लें, ये तो मैंने पढ़ना नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में मैथ्स पढ़ी है, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 2 साल में इंजीनियरिंग की मैथ्स मैं नहीं कर सकती। आई वेंट एंड फिल्ड माई ओन फॉर्म और मैंने इंग्लिश लिटरेचर पिक किया, साइकोलॉजी पिक की और साथ होम इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट थर्ड रखा, प्लस पर्शियन थी मेरे पास एंड आई स्टडीड दैट। और वुड यू बिलीव कि 2 साल मेरे अब्बू मुझसे नाराज रहे। आई फेल्ट बैड अबाउट इट, लेकिन 2 साल वो मुझसे नाराज रहे हैं। लेकिन जब मेरी FA में स्कॉलरशिप आई तो ही वाज वेरी हैप्पी। सो आई टोल्ड हिम कि दिस इज व्हाट आई कुड डू। वो मुझसे, मुझे पता है कि मैं अगर वहां जाती भी तो शायद मैं ना कर पाती। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते, उन पर प्रेशर इतना होता है कि वो शायद ये स्टैंड नहीं ले पाते कि हमने ये करना है। Although I could not do what I wanted to do, लेकिन मैंने फिर जो पिक किया मैंने उसमें एक्सेल किया, ठीक है। फिर बैचलर्स में मैंने अपने मेजर्स रखे लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एंड देन फाइनली आई वांटेड टू डू MS इन साइकोलॉजी। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं आप लिटरेचर में करो क्योंकि लिटरेचर का स्कोप ज्यादा है। तो आई ऑप्टेड फॉर, मैंने कहा चलिए आई वेंट along with his choice and it was not a bad choice, because I could do it। लिटरेचर मैंने 4 साल पढ़ा था। अगर मुझे लिटरेचर आज भी अगर मुझे कोई कहे कि आप साइकोलॉजी में MS कर लो तो मैं आई कैन डू इट। द रीजन इज कि मुझे वो दोनों सब्जेक्ट्स पसंद है, मेरे पसंद के सब्जेक्ट्स। अब इशू क्या है? इशू ये है कि हमने बच्चों को समझना है। सर ने जो बात की कि स्किल्स, आप मुझे बताएं डिग्री की हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक डिग्री इतनी लाजिम चीज क्यों है, जो मुझे समझ नहीं आई आज तक बात। हम कहते हैं बच्चे ने डिग्री लेनी है ताकि उससे आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। बच्चे ने सीखा क्या हमें नहीं पता। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम एजुकेशन के साथ स्किल्स को नहीं अटैच कर सकते? और इसके लिए जो मैं मिसाल अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ वो ये मिसाल है कि एक मोची का बेटा है, वो मोची ही रहेगा, वो उसी दरख्त के नीचे बैठेगा, अपने बाप से ऑब्जर्व कर करके बाप के एक्सपीरियंस से सीखेगा, स्किल लर्न कर रहा है। वो मोची का बेटा उसी दरख्त के नीचे मोची बन के रहेगा एंड ही विल ऑलवेज लर्न। इफ ही कंबाइंस इट विद एजुकेशन तो वो बड़ा शू स्टोर खोलेगा। You getting my point? He's doing the same thing. He's making shoes, but on a larger scale, with much more profitability. This is what we need to teach our students. Degree की अहमियत अपनी जगह पे है, but you have to combine your degree, your knowledge with a skill. आप मुझे बताएं, आजकल हम बाहर जाते हैं, ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं या वो अफराद के इवन इंजीनियरिंग करके आते हैं, इनमें डिप्रेशन क्यों है? They can't land a job for themselves. लिमिटेड जॉब्स हैं गवर्नमेंट में, आप या तो प्राइवेट जगह पे काम करें या ऐसे भी देखते हैं जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेके कर रहे हैं और सड़क के किनारे पकौड़े बेच रहे हैं, क्योंकि घर में तो आपने रोटी खिलानी है ना।
अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट में जॉब नहीं है, कहीं जॉब की जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक तो ये स्टिग्मा हटाना कि काम करने में ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खेतों में काम किया है, यहूदियों के जो बागात थे उन्होंने काम किया है, अपने हाथ से अपनी जगह बनाई है, अपने हाथ से अपने जूते जो हैं वो स्टिच किए हैं, अपने कपड़े से। आपको क्या आपको क्या लगता है, आपकी क्या हैसियत है कि आप किसी को डिस्करेज करो कि नहीं तुमने जो है इस फास्ट फूड में रिलेटेड काम नहीं करना, या तुमने फलानी जगह पे जो है कॉल सेंटर में जॉब नहीं करनी। अ जॉब इज अ जॉब, अ वर्क इज अ वर्क, लेट देम एक्सपीरियंस इट। उनको करने देंगे काम, उनको पता होना चाहिए कि ये हमारे उनके हाथ में स्किल रहेगी ना, ठीक है। तो ये स्किल जो हम इस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, ये स्किल हमारे जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, आई थिंक उन पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि वो आपका एक टेक्निकल स्किल कॉलेज के लेवल पे और यूनिवर्सिटी के लेवल पे लाजिम रखें। वो टेक्निकल स्किल हो स्टूडेंट की चॉइस। तो आई थिंक इसमें बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल चीजों में इंटरेस्ट होता है, उनको कारपेंट्री सिखाएं, मैकेनिकल कोई स्किल सिखाएं, कलरी स्किल्स है, कोई उनको होटल मैनेजमेंट, शेफ, इस तरह की कोई चीज आप सिखा सकते हैं, लेकिन एक स्किल डिग्री के साथ नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। बिल्कुल ठीक कह रही है मैम आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जब पूछते हैं ना कि अगर मेडिकल की या इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बहुत सारी तकरीबन कोई 75 के करीब डिग्री प्रोग्राम्स हैं, कि सर इनमें से कौन सी डिग्री बेहतर है। तो मैं उनको एक जवाब देता हूं, मैं आज भी यहाँ पे वो बात करूंगा कि इनमें से एक भी डिग्री बेहतर नहीं है। डिग्री नहीं डिसाइड करती कि इंसान का फ्यूचर क्या है, इंसान का स्कोप क्या है, ये इंसान खुद डिसाइड करता है। एक कागज का टुकड़ा इंसान की वैल्यू नहीं बता सकता मैम। ये इंसान के अंदर की छुपी हुई वो क्वालिटीज, वो स्किल्स होंगी जो वो बताती हैं कि इस इंसान की वैल्यू क्या है, इस इंसान का स्कोप क्या है। लेकिन बड़ी जॉब चीज है आप जी, हमारा सनी जो हमारा सिस्टम है ना, वो जॉब आपको डिग्री देके देता है। नहीं So बिल्कुल बिल्कुल। this whole system needs overhauling, educational system प्लस जो हमारा हायरिंग और जो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है, इट ऑल नीड्स ओवरहॉलिंग। आप मैम जो मुझे बात ये बताएं, हिडन होंगे जब तक कि वो निकल के सामने नहीं आएंगे। मैम मुझे ये बताएं, देखें अगर एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से उसने एमबीबीएस किया है, उसको ठीक है, टीका लगाना नहीं आता, उसको दवाई लिखनी नहीं आती, उसका कोई स्कोप है? उसका कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे ने सिंपल बीएस किया है, कार्डिक परफ्यूनिस्ट है, वो किसी अलाइड हेल्थ साइंसेज में उसने बीएस किया हुआ है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट है अपनी यूनिवर्सिटी का, हाँ उसकी वैल्यू जरूर है। ये चीज हमने सब के सब स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ हमें बतानी होगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अब हमारा फेट गोल्ड मेडल डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो भी गोल्ड मेडल किससे मिलता है, ऑब्वियसली आपके नॉलेज पे या फिर जो आपकी डिग्री होती है उसी पे। जब बात करते हैं स्किल की तो वो तो अदर देन डिग्री चली जाती है ना, फिर ये तो नहीं, वही जब आप बात है, यू मास्टर्स आर इन कर रहे हैं फेवर उरूज, ऑफ देखिए जब आप डिग्री। मास्टर्स कर रहे हैं तो सिर्फ आपका नॉलेज नहीं देखा जा रहा, आपको गोल्ड मेडलिस्ट उसमें नहीं मिल रहा सिर्फ आपको, आपकी बहुत सारी लैब्स होती हैं, आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कोई भी डिग्री अगर मास्टर लेवल पे, तो वो काफी रिसर्च करने के बाद आपको मिल रही होती है, इवन जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो ये जो गोल्ड मेडल की बात है, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदे को पूरी की पूरी किताबें याद है और उसको गोल्ड मेडलिस्ट है, नहीं। जो भी करें, जो बंदा चाहता है, जो स्टूडेंट चाहता है वो करे। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपकी बात समझ आ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी चीज सेलेक्ट करो डजेंट मैटर्स, लेकिन उसमें एक्सेल करो, बिल्कुल उसमें अपना हार्ड वर्क पुट इन एग्जैक्टली करो, उसमें बिल्कुल अपनी सारी बिल्कुल। एफर्ट दो, फिर रिजल्ट बनाओ। थैंक यू सो मच। मैम मैं आपकी तरफ चलूंगी, यहाँ पे भी बात हो रही थी टेक्नोलॉजी की, तो क्या ये गलत है कि हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, या फिर ये गलत है कि हम उनको लाइक गाइड नहीं करे, डायरेक्शन नहीं दे रहे, या लिमिटेशंस उनको नहीं बता रहे, या अगर बता भी रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे? इस पे आप क्या कहेंगे? पहली चीज ये है कि ये टेक्नोलॉजी आप बच्चों से दूर नहीं रख सकते।
टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर जगह पे है, एप्लीकेबल है, आप कहीं भी जाएं। अब आपने बिल्स भी आप मोबाइल पे ऑनलाइन पे कर देते हैं, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है, इंटरनेट है। पूरी दुनिया जब एक चीज़ में आगे चल गई है तो अपने कंट्री को से आप दूर रख के आप तरक्की नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी दे ज़रूर, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं आता, टेक्नोलॉजी में उसका प्रॉपर यूजेज भी आता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को भी छोड़ दें, आप नॉर्मल लाइफ में भी गाइडेंस जब तक बच्चे को नहीं देंगे ना, तो उसके हाथ में जो पेन है वो भी एक कत्ल का वेपन बन सकता है। ठीक है, जब तक कि गाइडेंस नहीं है। इट्स नॉट द थिंग्स, इट्स हाउ यू यूज देम। टेक्नोलॉजी आपके हाथ में एक बहुत अच्छा एक करामत एक टूल है, उसको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों को गाइड करना है टू मैक्सिमाइज इट्स बेनिफिट्स, और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनसे बच्चों को अवेयर करवाना है। बच्चों को नॉलेज दें कि बेटे ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है और ये चीज़ आपके लिए सही है। दूसरा, छोटे बच्चों को मॉनिटर करें जब भी वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, what kind of programs they are watching, what kinds of websites they are going on, क्योंकि they don't know the difference between right and wrong। ठीक है, तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स का मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अब वो जो समी ने बात की कि माँ जो है वो अपने घर के काम में मसरूफ है, फादर जो है वो कमा रहे हैं, वो बच्चा तंग कर रहा है, या बच्चा जो है वो अटेंशन मांग रहा है माँ बाप की, या बच्चा चाहता है कि मेरे से कोई बात की जाए, और दोनों बिजी होते हैं, तो वो कहते हैं चलो जाओ जाके तुम टीवी देखो, मूवी लगा लो भाई, या चलो तुम ये मोबाइल पर गेम खेलो। ये बहुत बड़ा आजकल है कि जी बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं एंड पेरेंट्स आर डूइंग देयर ओन थिंग। आपको पता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कहते हैं जो ब्लू लाइट है which comes from the electronic gadgets, it can be either the mobile or the laptops, that's not good for you। वो आपको आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखती है, जिसकी वजह से आप जल्द सो नहीं पाते, और बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन नॉट स्लीप एट नाइट, और दे हैव अ प्रॉब्लम स्लीपिंग एट नाइट। तो डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ब्लू स्क्रीन टाइम लिमिट करें, और सोने से 3 घंटे पहले आपने बिल्कुल कोई कंप्यूटर स्क्रीन यूज नहीं करनी। हमारे बच्चे जो है सुबह 5 बजे तक जागे होती है, मोबाइल पे उनकी वो पबजी गेम चल रही होती है, उसके बाद पूरा दिन वो सोते हुए गुजारते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को मॉनिटर करें। अब एक जो ठीक है, ये कोविड की वबा आई, इट्स अ पेंडेमिक, एंड लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब एंड ऑल दैट। इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो ये है कि द होल फैमिली had the time to sit together। We had a lot of time to think about the things which we never thought of, because हमारे पास टाइम नहीं था ना। पहले हम भाग रहे थे, बाहर का काम, घर का काम, यहाँ वहाँ। एटलीस्ट वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, चलो जो भी के काम था लैपटॉप पे काम किया। वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू अटेंड टू आवर फैमिली। हम इकट्ठे बैठ के टीवी सीरियल भी देखे, एंड जस्ट लुकिंग एट माय सन सेड यार तुम लोग इतनी फैमिली में थे, तो आई नो यार। तो ये वो वाली बात है कि we didn't when you try to understand and interact with your family, आपको ये जो मोबाइल के अट्रैक्शन है, गेम्स की अट्रैक्शन है, ये खत्म हो जाती है। जब बच्चे छोटे थे तो आई यूज्ड टू engage them together, उनको स्टोरी सुनाना फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द प्रॉफिट, मॉरल स्टोरीज सुनाना। आज के बच्चे क्यों आए जो ये सुनाते? उनके पास टाइम नहीं है ना। ठीक है, और जो टाइम वो है वो लिमिटेड टाइम। इस्लामियात की बच्चे से पूछ लो, या इस्लामियात की बुक आप खोल लो। आजकल का बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, दे नो मोर देन यू डू। आजकल का बच्चा जो है वो आपसे ज्यादा एक्टिव है, आपका आजकल का बच्चा आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, और आजकल का बच्चा क्वेश्चन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यू आंसर देयर क्वेश्चंस। कभी बच्चे को ये मत कहो कि तुमने क्या स्टूपिड सा सवाल किया, इट वुड बी अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन टू यू, लेकिन उसके माइंड में अगर वो सवाल आया है तो इट्स इम्पोर्टेंट टू दैट चाइल्ड। ऑलवेज आंसर अ स्टूडेंट्स और अ चाइल्ड्स क्वेश्चन, ताकि उसके जहन में वो जो एक खलबली मची हुई है ना, उसको उसका जवाब मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स शुड इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स। मैं आपको एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आई वाज टीचिंग इन एन ऑल बॉयज स्कूल इन
रावलपिंडी, एंड मेरे अपने उस वक्त तीनों बच्चे बहुत छोटे थे, तो मुझे क्लास 8, 9, 10 की इन्होंने क्लास दी पढ़ाने के लिए, और वो क्लास मशहूर थी। 8th Blue was the section and it was dreaded by all teachers. और यंग जो टीचर्स थी, जो अनमैरिड हुआ करती थी, वो तो दूसरे दिन वहां से कहते हैं कि रोते हुए टीचर्स क्लास से बाहर निकला करती थी। तो उस क्लास में nobody was willing to go, और मुझे जो है वो मेरी हेड ने क्लास टीचर बना के उस क्लास में भेज दिया। ऑल बॉयज क्लास, आई थिंक मे बी 48 स्टूडेंट्स थे, या इसी काफी बड़ा नंबर था। द फर्स्ट थिंग आई डिड अरूज, मैंने वहां जाके बड़े आराम से उनको रूल्स बता दिया क्लासरूम के, दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, एंड व्हाट टेल मी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। वो जो कुछ बोलते गए मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती गई। ओके, दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरी उतरूंगी, बट दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस एंड दीज आर द रूल्स ऑफ द क्लासरूम फॉर यू पीपल टू फॉलो। आप ये फॉलो करेंगे तो यू विल फाइंड अ गुड टीचर। दूसरी रूल जो मैंने बात की, आई बिकेम फ्रेंड्स विद देम। उनकी कुछ शुरू में जो उन्होंने कुछ बदतमीजियां की मुझसे, मुझे भगाने के लिए, मैंने उनको बिल्कुल टोटली इग्नोर किया, और मैंने उन्हें ये कहा कि बेटा आप जिस स्टेज से गुजर रहे हो, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट स्टेज। ये एज मुझ पे आपसे पहले आई थी, आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। क्योंकि आपको पता है जो ये एज होती है 8, 9, 10 प्यूबर्टी का टाइम होता है, और स्टूडेंट समझते हैं कि हम पता नहीं कोई खलाई मखलूक है, वी आर कोई सुपर हीरोज हैं, यू नो, दे हैव वेरी गुड इमेजेस अबाउट देमसेल्फ, बहुत पॉजिटिव उनके अपने इमेजेस अपने बारे में होते हैं। तो उसको शटर नहीं करना आपने, बट यू नीड टू चैनलाइज देम। सो आई यूज्ड टू टेल देम, देखें आपके, आई नो आई एम अ फ्रेंड ऑफ यू, कैन आप कोई आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन कम एंड टॉक टू मी, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर एजुकेशन। आप मुझसे 100 दफा सेम क्वेश्चन करोगे, मैं आपको कभी डांटूंगी नहीं। ये मैंने उनको लिवरेज दी कि मैम हम कोई सवाल करते हैं टीचर से, टीचर कहते हैं अभी तो मैंने पढ़ाया था, तुम फिर वही सवाल कर रहे हो, तुम डफर हो, तुम ऐसे हो। आई नेवर इंसल्ट स्टूडेंट्स, और मैंने उन्हें कहा कि बेटी कैन ऑलवेज कम टू मी, आप एक सवाल मुझे 100 दफा पूछोगे, मैं आपको 100 दफा जवाब दूंगी, जब तक कि आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। जब आप स्टूडेंट्स को एट ईज करते हो ना, तो दे फील दैट द टीचर इज अप्रोचेबल। वो फिर आपके और उनके दरमियान का जो बैरियर है, उसको वो बैरियर थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाता है। अब लोअर डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ बैठ के उनके हाथ पे हाथ मार के गप्पे और जोक करूंगी, नहीं। इट मीन्स आई एम अप्रोचेबल, बट आई डिमांड रिस्पेक्ट। दिस इज माई डिमांड, मैं आपकी डिमांड पूरी कर रही हूँ, आपको जो आप कहोगे आपको पढ़ाऊंगी। जिस दिन आप जो पढ़ना चाहोगे, उनसे पूछा मैंने आपने नॉवल किस दिन पढ़ना है, उनसे मैंने पूछा आपने ग्रामर किस दिन पढ़ना है, मैम हम रोजाना ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, हम 2 दिन पढ़ेंगे। आई सेड ओके डन। आप कुछ उनकी मानो, कुछ अपनी मनवाओ। बच्चा एट ईज फील करता है, वो ये नहीं फील करता। फिर देन दे यूज्ड टू स्टार्टेड टू एंजॉय माय इंग्लिश क्लास। उन्होंने फिर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके कहा कि आप अपनी हिस्ट्री भी इसी टीचर को दे दें। ऑल्दो हिस्ट्री वाज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन हिस्ट्री मैंने उनको पढ़ाई एंड दे रियली एंजॉयड इट। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम आपको पता है कि हमें तो ये वर्ल्ड वॉर 1 का और 2 का हमें तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ, लेकिन आपने जब इस तरह से हमें पढ़ाई है हिस्ट्री, बिकॉज आई यूज्ड टू इवन शो देम वीडियोस और पिक्चर्स एंड ऑल दैट, तो अब हमें लगता है कि शायद हम एक्सपर्ट हो गए, आप हमसे हमारा क्विज लिया करें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का। तो वो इंटरेस्ट डेवलप करना किसका काम है? वो एक टीचर का काम है, ठीक है। कोई, मैं बिलीव करती हूँ कि अगर शायद मुझे कोई अच्छी मैथ्स की टीचर मिली होती ना, तो शायद मेरा मैथ से दिल इतना खराब ना हुआ होता, बिकॉज आई माई सेल्फ हैड बीन इन दैट सिचुएशन कि जब मुझसे मैंने पूछा एक सवाल कि मैम आगे उसका आंसर व्हेन वन कैसे आया, उसकी सेट की पेपर साइड नहीं, साथ में लड़की बेटी से पूछो कैसे आया। भाई यू आर द टीचर, यू आर सपोज्ड टू टेल मी, मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही, आप मुझे क्लियर करो। बिकॉज आई हैड बीन थ्रू दिस थिंग माई सेल्फ, I made sure that my students left my classroom with a very clear mind, with very clear concept, so that I could sleep at night with a clear conscience. मैंने हमेशा ये नोट किया और हमेशा मैंने ये चीज देखी कि जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स कुछ सीख जाते थे ना, उस दिन मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, और मैं आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी दैट आई हैव डन माय ड्यूटी। तो मेरे ख्याल में ये जो रूट जो ये सनी साहब भी एग्री करेंगे, जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना, इट इज प्रॉफिटिंग, ये पैगंबरों का पेशा, इसके साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते,
जो इसको इसी तरह से लेके चलता है, अंबिया की मिरास लेके चलता है और आगे इसी तरह से डिलीवर करता है, अल्लाह ताला उसको समर अपनी आंखों के सामने आज करीबन 15 साल के बाद भी अगर मुझे कोई फॉरेन स्टूडेंट मिल जाता है, आई कांट रिकॉग्नाइज देम बिकॉज़ दे हैव ग्रोन अप सो मच, यू नो, एंड दे हैव चेंज्ड अ लॉट, बट शायद मुझे उतनी चेंज नहीं, और वो मुझे बीच बाजार में खड़े होके मिलते हैं एंड दे रिस्पेक्ट मी सो मच। और उस वक्त यू नो आई फील इतनी मुझे खुशी महसूस होती कि देखो एटलीस्ट मुझे अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ है और हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट उनके साथ है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि टेक्निकल स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ कोई ना कोई टेक्निकल जरूर सिखाऊं। बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मैम खदीजा का, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा लगा ये बातें सुन के। जब आप बात कह रही थी ना एंड वाली के, जब आप बाहर जाती हैं तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको और आपको बड़ा ऑनर फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लिटरली ऐसे ही है मैम। जब आप मार्केट में जाते हैं रिस्पेक्ट से टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े होते हैं, सलाम करते हैं आपको लगता है बस मैंने कमा लिया दुनिया में, बस ये एक इज्जत है। तो ये बड़ी चीज मैटर करती है। और सेकंड नंबर पे ये चीज मैम कि जब एक टीचर सिर्फ इस नीयत से अगर पढ़ाता है, मैं समझता हूँ कि जी बस मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ये आवर्स पूरे करने हैं और फिर मैंने चले जाना है, आके चले जाना है, उसकी ना तो फिर इस माशरे में और ना फिर अल्लाह के सामने कोई इज्जत नहीं होती। और ये स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है, यकीन करें ये स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं, ये पता चल स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ये वैसे ही बस इन्होंने किया हुआ है। आप कह सकते हैं कि एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड होता है इसका इंग्लिश में, टाइम पास के लिए टीचर। हाँ टाइम पास, एग्जैक्टली, हमें टाइम पास के लिए इन्होंने ये यहाँ पे आए हुए हैं। जो आप दिल से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत इज्जत करते हैं आपकी। जी उरूज। ऐसे ही। और एक और थैंक यू सो मच सर। बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में एक टीचर्स की ट्रेनिंग है। दूसरी चीज ये है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाहर की तमाम कंट्रीज में जो टीचर्स हैं दे आर हाईली पेड, स्पेशली जो छोटी क्लासेस के टीचर्स हैं दे आर हाईली पेड। छोटी क्लासेस के क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी भी हमने यही पढ़ा कि जो शुरू के अर्ली इयर्स होते हैं 1 to 4 इयर्स वो बहुत क्रूशल होते हैं बच्चों के लिए। उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, चीजें सीख रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, मोस्टली फीमेल्स आती हैं जी, हमने मैट्रिक किया होता है उनको। हाँ अभी हम फ्री हैं, एफए किया हुआ तो स्कूलों में जो सॉरी स्ट्रीट्स में जो स्कूल खुले हुए हैं, चलो जी कम पैसों पे 7,000-8,000 पे आप वॉलंटियर से संभालने क्लास को पढ़ाते प्रैक्टिकल तो पढ़ाना नहीं, एफए पास पढ़ा सकता है, लेकिन क्या वो बंदा ट्रेन है पढ़ाने के लिए? क्या वो बंदी जो 18-19 साल की है बच्चों की सेफ्टी को समझती है? क्या उसे पता है बच्चों का हैंडल क्या करना है? हमारे यहाँ तो आप नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े एजुकेशनल सिस्टम में चले जाएंगे, वहाँ पे जो छोटे बच्चों की टीचर्स हैं दे आर हाईली पेड, दे आर हाईली स्किल्ड, दे आर ट्रेन्ड, और इज्जत बहुत है वहाँ पर टीचर, बहुत ज्यादा उनके बेनिफिट्स का ख्याल रखा जाता है। अगर इस चीज को समझ लिया जाए कि टीचिंग वो वाहिद पेशा है जो तमाम पेशों की माँ है, ठीक है, तमाम पेशों को बनाता है, तो बाकी कोई प्रोफेशन ना कोई डॉक्टर्स हो, ना कोई इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन नहीं एग्जिस्ट करता अगर टीचर्स ना हो। और फिर भी इसके बावजूद हमारी निगाहों में उनकी इज्जत नहीं हुई, हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी प्रोफेशनल जो है होनी चाहिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि जो लोग पीएचडी कर लेते हैं दे आर कॉल्ड डॉक्टर। क्या एक पीएचडी एक अच्छा टीचर हो सकता है? यस, हो सकता है अगर उसमें टीचिंग कैपेबिलिटी है। तो टीचिंग करना एक डिफरेंट चीज है, आपका
नॉलेजेबल होना एक अलग चीज है। जब हम डिग्री हासिल करते हैं ना, तो डिग्री हम अपने लिए हासिल करते हैं, वो हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज को एक्नॉलेज करने के लिए कि लोग रिकग्नाइज करें कि हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम डिग्री लेते हैं। उसका ताल्लुक टीचिंग एबिलिटी से नहीं है। एक माली भी बहुत अच्छा टीचर हो सकता है जो कि अनएजुकेटेड है, वो अपनी बात, टीचिंग का मतलब क्या है कि अपनी बात आपने दूसरे के जहन में उतारनी है, ये एक स्किल है, ये हर बंदे के पास नहीं है। हमने क्या कर दिया, हमने टीचिंग को एसोसिएट कर दिया विद नॉलेज, कि पीएचडी है, पीएचडी ही हायर करना है। पीएचडी बहुत से ऐसे देखे जिनको पढ़ाना नहीं आता, वो आके क्लास में अपनी नॉलेज ही झाड़ते हैं, वो पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। पढ़ाने की जो ट्रेनिंग है, जो कि हमारे यहाँ बीएड होता है, एमएड होता है, जहाँ पे बताया जाता है कि एजुकेशन क्या है, उसके टूल्स कौन से हैं, उसकी एप्लीकेशन कैसी है, ये चीज मेरे ख्याल में मस्ट होनी चाहिए हर टीचर के लिए। टीचर के पास टीचिंग डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर होने दिया जाए, क्योंकि एटलीस्ट दैट पर्सन वुड बी एन ऑथेंटिकेटेड टीचर ना, ऑथेंटिकेट हो गया कि हाँ भाई इसको टीचिंग आती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, आगे नहीं बढ़ाने के लिए, आगे नहीं बढ़ाने के लिए। तो इट्स लाइक अब बहुत सारे आपने देखा होगा, आपकी बात काटने हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है बीएड की या एमएड की, अगर हम बात करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यकीन करें मैम, आप भी उनका सिलेबस उठा के देख लें बीएड का एमएड का, वो बहुत जबरदस्त सिलेबस है। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सिलेबस है वो। सेकंड नंबर पे आपने बात की कि इज्जत की, वाकई उतनी वेटेज नहीं दी जाती। आज इस पैंडेमिक में देख लें, सारा कुछ खुल गया पाकिस्तान में, सारे इदारे खुल गए जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल गई है, सब कुछ खुल गया, प्राइवेट इदारे नहीं खुले। वो टीचर, वो सफेद पोश लोग कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो भीख मांगेंगे, वो मजदूरी करेंगे, उनके पास तो कोई स्किल्स नहीं है सिवाय टीचिंग के। 60-70% लोग, 60-70% टीचर्स, यकीन करें वो दिहाड़ी लगा रहे हैं क्योंकि वो मांग नहीं सकते। सही बात है। और इसकी परवाह नहीं है। देखिए सनी, ये चीज जो है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। जब आपने सिनेमा खोल दिए, आप बैंक्वेट्स खोल रहे हो, आपने होटल्स खोल दिए, तो आपको यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस खोलने में क्या मसला है? आप छोटे बच्चों के स्कूल ना खोलें अभी, आप छोटे बच्चों के स्कूल ना खोलें, क्योंकि छोटे बच्चे केयरफुल नहीं ना होते, बड़े तो फिर थोड़े से करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो टीचिंग सिस्टम है इसको रेगुलाइज करे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहे जी ये मिनिमम सैलरी है जो आपने अपने बच्चे को देनी है सैलरी में। यहाँ पे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो वो क्या बोलते हैं, माफिया बनाया हो कि उनकी मर्जी है कि वो जितना मर्जी टीचर्स को करना चाहे। दो टीचर्स एक ही क्वालिफिकेशन की है, लेकिन एक जो है वो प्रिंसिपल उसको ज्यादा सैलरी दे रही है और दूसरी कम दे रही है। ठीक है, वर्कलोड के मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं इस बात का गवाह हूं, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 17 मार्च को, कई इदारे ऐसे थे जिन्होंने 21 मार्च को अपने 50% एम्प्लॉय खत्म कर दिए, उनको अनएम्प्लॉय कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। वो ड्राइवर्स थे, वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो ऑफिस बॉय थे, वो क्लास मैनेजर्स थे, किसी को एहसास नहीं हुआ उनका। और देखिए सर, इन एडिशन टू योर थॉट, ये एक अनयूजुअल सी कंडीशन थी, कोई प्रेडिक्टिव नहीं थी। हम सब लोग इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करें, तो ये तो इंसान के ऊपर होता है ना कि वो किस तरह से हर कंडीशन को टैकल अप करता है। या टीचर्स हैं तो अगर दे कैन गो फॉर ई लर्निंग या जो भी है। मैम, वाइंड अप करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि जो थॉट्स होती है ना, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि लेटर ऑन लाइफ में जो आपका करियर बनता है, वो उनका ब्लूप्रिंट के फुटप्रिंट अगर हम देखें तो वो आपकी थॉट्स होती हैं। तो हम अपने थॉट्स को कैसे फिल्टर अप कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, थॉट्स जो होती हैं, कुछ होती हैं जो कि आपकी सेल्फ जनरेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, यू पिक अ टॉपिक एंड यू थिंक अबाउट इट। कुछ थॉट्स वो होती हैं जो आपके पास्ट में या आपकी अनकॉन्शियस से निकल के आपके दिमाग में आती हैं। आपकी इन्वायरमेंट बहुत सारी थॉट्स को प्रोवोक करती है या उनको परवान चढ़ाती है। मिसाल के तौर पे एक पौधा है, ठीक है, आप उस पौधे को पानी देते हैं तो वो पौधा बढ़ता है। इसी तरह थॉट्स हैं, जब तक आप थॉट्स को नर्चर नहीं करोगे वो थॉट्स आगे बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, अगर वो थॉट्स नेगेटिव होंगी तो वो थॉट्स बड़े होके
आपको कोई अच्छा फायदा नहीं देंगी। यानी कि नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। Positive thoughts. अब एक ही चक्कर है कि आप कैसे थॉट्स को फिल्टर करेंगे। इफ अ थॉट is taking you towards anxiety, towards depression, towards negative feeling, then you need to immediately stop that. आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का सोच के या जो मेरी जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आई शुडंट बी थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। आप उस थॉट को चैनल करें टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, कि ये थॉट मेरी है लेकिन मैंने इस सिचुएशन से अपने आप को खुद निकालना है। मैंने इसको चैनल करके, ये जो एनर्जी मेरी है इसको चैनल करके आई नीड टू टेक इट टू द राइट पाथ। उसके लिए अच्छा, अब यहाँ एक और एस्पेक्ट है, वो है यूथ में डिप्रेशन। आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का शिकार क्यों है? पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है। दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्यों है? क्योंकि हमने फॉल्स आइडल्स बनाएंगे। बच्चे ने मेडल लेना है, बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, बच्चे का एप्टीट्यूड उस चीज का सब्जेक्ट का नहीं है, आपने जबरदस्ती सब्जेक्ट पढ़ा दिया। बच्चा जहाँ दोस्ती करना चाहता है वहां पेरेंट्स मना कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ सफर कर रही है हमारी सोसाइटी में। अब इसमें हेल्प करना है हमने स्टूडेंट्स को, इसमें हेल्प करना है इन बच्चों को, उनको बताएं कि ठीक है बेटा, आपने जो स्टूडेंट आप सब्जेक्ट नहीं ले पाए ना, वो अपनी पसंद का, कोई बात नहीं, जो लिया है इसमें एक्सेल करो। आपको हेल्प चाहिए, हाँ, वी विल हेल्प यू विद दैट। गुड टीचर चाहिए, ट्यूशन चाहिए, आपको रखवा देंगे। आप इसमें ये करो, आप इसमें अचीव कर लो, आपको हम ये चीज ले देंगे। आप ये कर लो, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देंगे। आप इस पे अच्छा अचीव कर लो, हम आपको बाहर भेज देंगे। गिव देम समथिंग गुड, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आप अगर बच्चे का बिल्कुल आगे से स्कोप, फ्यूचर स्कोप बंद कर दोगे कि इसमें पास करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, बच्चा एफर्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है, हमारे यहाँ जो स्नब करने की आदत होती है कि एक बच्चा एंजाइटी फील कर रहा है, हम ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या मसला है, हम कहते तू क्या गुस्सा मुंह लेके फिर रहे हो, जो जाके मुंह धो के आओ, सबके साथ तू ना बैठो। भाई आप पूछो तो सही, उसका मूड क्यों खराब है, उस रीजन को एलिमिनेट करो। बच्चे जो फील करते हैं, बच्चों की फीलिंग्स उनकी अपनी मेच्योरिटी लेवल से अराइज करती हैं। पेरेंट्स और टीचर्स डेफिनेटली उनकी मेच्योरिटी से बहुत ऊपर है। एक बच्चा नहीं महसूस कर सकता कि माँ बाप क्या फील करते हैं, माँ बाप पे क्या गुजरती है। माँ बाप कैन ऑलवेज फील कि हमारा बच्चा इस वक्त स्टेज से गुजर रहा है, बिकॉज दे हैव देमसेल्व्स लिव्ड दैट एज, दे हैव बीन देयर, they can better understand the feelings of a youngster। तो आप अगर जहां पे भी देखें कि आपका बच्चा नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहा है, उसको फॉरवर्ड चैनल करें पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स बच्चा कब आते हैं बच्चे के जहन में, या बच्चा नेगेटिव थॉट्स जब जाता है जब ही हैज नथिंग टू डू, जब वो बिजी नहीं है, जब वो आइडल है। आप उसको ना, एंटी ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, आप उसको कोई करने के लिए कोई काम दे दें, उसी किसी काम पे लगे, बेटे ये आपका टास्क है आज का, आज आपने शाम को हम आए तो ये काम आपने किया वो, ठीक है, आप ऐसा करो, आज आपने गार्डनिंग आपने करनी है, ये लो पकड़ो बकेट, पकड़ो गाड़ी धोना, जाओ गाड़ी धो। जब बच्चा कोई और काम करेगा ना तो उसका माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो ये वो टेक्निक्स है। बच्चा कुछ देखिए, हर बच्चा अपना इलाज नहीं कर सकता, हर बच्चा अपने आप को पॉजिटिव की तरफ नहीं ला सकता। जो उसकी इन्वायरमेंट है ना, तो उसका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको नेगेटिव की तरफ जाने से बचाएं। अ टाइम विल कम दैट ही विल स्टार्ट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द पॉजिटिव एक्टिविटी, और फिर वो उसको आदत बन जाएगी उसकी। So true मैम। सो हमारे शो का टाइम खत्म हो जाते हैं, तो एक लास्ट मैसेज सर आप क्या देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा, जैसे मैम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की नेगेटिव थॉट्स की। नेगेटिव थॉट्स बेसिकली ये इंसान के अंदर से जनरेट होती हैं। यकीन करें कि जब आप किसी के साथ है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन आप बात करते हैं, आपको फील होता है कि यार इस बंदे में आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, यू फील देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम और हर। आप पीछे हटने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, जो अप्रिशिएट करते हैं आपको, जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। ये हमारी जनरेशन उनके साथ उठना बैठना शुरू करे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं समझता हूँ, अपना टारगेट जरूर सेट करें ये स्टूडेंट्स।
किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं अरूज। सबसे पहली चीज, इंसान सोचता क्या है अपने टारगेट के बारे में, वो कितना बड़ा विजुलाइज करता है। जब तक आप ख्वाब नहीं देखते, जब तक आप विजुलाइज नहीं करते चीजों को, आप कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। आपकी सोच छोटी है, यकीन करें आपके टारगेट्स भी छोटे होंगे। अपनी सोच को बड़ा करना होगा। सेकंड नंबर पे, स्ट्रगल टुवर्ड्स योर टारगेट। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने स्ट्रगल नहीं किया और उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, पॉसिबल ही नहीं है। और थर्ड नंबर पे जो चीज है, डायरेक्शन टुवर्ड्स योर टारगेट, कि आपकी डायरेक्शन भी ठीक है आपके टारगेट के लिए कि नहीं है। तो ये 3 चीजें अगर स्टूडेंट कर लें, और नॉलेज और स्किल्स पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा देख लें इन चीजों को, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उनका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। और मैम, आपका लास्ट मैसेज हमारे सब व्यूअर्स के लिए? मेरे लास्ट वर्ड यही होंगे कि अपने आप को फोकस्ड रखें। जो सर ने बोला, डोंट लूज योर फोकस एंड व्हाटएवर यू डू। लेकिन थॉट्स, जो आपके एक्शंस जो है ना, वो आपके थॉट्स के से राइज करते हैं। योर थॉट्स लीड टू एक्शंस। तो अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें, वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स, और अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको ऑर्गेनाइज करें। जैसा टाइम लिमिट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इन चीजों को अपनाएं। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो मैक्सिमम आप बेनिफिट उठा सकते हो अपने वक्त से, वो उठाएं। अपनी लर्निंग के साथ अपने स्किल्स जो भी आपको पसंद है, स्किल्स में आप ट्रेनिंग में, डिप्लोमा में कोर्सेज करें और अपने आप को बेटर इक्विप करें। Sir Mike, thank you so much मैम। और द क्रक्स ऑफ टुडेज टॉक शो वाज कि बच्चों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो भी एनर्जी है, क्योंकि हर तरफ से नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव भी है, सेलेक्टिव हो जाएं और जहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसको एब्जॉर्ब करें और रिपेलेंट हो जाए नेगेटिव वाइब्स की तरफ, या नेगेटिव जिस भी चीज़ की तरफ नेगेटिव वाइब आती है छोड़ दें, उसको कट ऑफ कर लें। और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका खास ख्याल रखें। और टीचर से भी कि वो अपने पैशन से काम करें, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट मेनी टीचर्स हु आर PhD holders, but believe me, they can only read the slides. They have nothing to do with the career of a student. या काउंसलिंग की बात तो बहुत दूर रह जाती है। इसको अपना फर्ज समझें कि जो आज के बच्चे हैं वो कल का मुस्तकबिल हैं। और जैसे जैसे आज हम उन्हें गाइड करेंगे, उनको एक पाथ देंगे, उसी पाथ पे चलते हुए कल को वो हमारी नेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच मैम। और एक चीज मैम यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि यू आर वन ऑफ माय फेवरेट टाइप ऑफ टीचर्स। जिस तरह के हम लोग के लाइफ में टीचर्स आए हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह थे। और सर समी इज ऑलवेज ऑल फेवरेट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मुरुज, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, उनको दुआओं में याद रखिए और उनके डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।